ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong ka Ministry of Social Justice and Empowerment ka badai kisnat rekam jo sarkar India kala bu thong hakmat ban kentio bat ban pun kop bor ki brio ki baduna de khotmet hakani ki jila Meghalaya bat kumju ru hakari India borokoi Menteri Jokatnat Social Justice and Empowerment Dr. Virendra Kumar Ublawan yok kejat Hanong Bak Shillong haka arpoi tereng unai luar arajar arpoi ulai kenduk kerpang ru iki kenhun ki batrei nak bentak kabha kamiat jong ki brio ki badan jingduna ki department bat iki kenhun ki batrei nak bentak ki brio ki belasya te marau haki jingdi buat hakini jingelang ka kerpang balasan ranlang daki officer Jokatnat Social Welfare lai shimentalang da secretary Jokat North Eastern Council UK Moses Chalai principal secretary Jokat Sarkar Jila Usampat Kumar ka kong MN Nampui ka badai ka commissioner and secretary bat kiwi ki he officer Jokatnat Social Welfare bat kentup ru ya kiseng Tremon Sobha ki bahap apo ka jingpet Jokat Social Welfare state government in fact especially Meghalaya has always been a very a state with a lot of sensitive approach towards this sector. So state means this includes not only the government and government agencies but also the NGOs and civil society organizations who are all working for this particular welfare of the differently abled children and differently able people. So we have around 40,000 disabled people are there in the state, and so there is and we in fact we are also trying to provide different services to the disabled people, and one of the important thing is that special education. So one very important thing is that how actually the children with disabilities are getting that inclusive education. So that's where a lot of focus is being given by the state government. So I just wanted to tell you there are some NGOs, around 7 NGOs are there. So those 7 NGOs are ये जो disability education, special education के ऊपर काम कर रहा है. So we in fact the state government having seen their work, and last year we launched a state specific scheme to support the schools, especially to pay the salaries of the teachers of the schools. So this is about 1.3 crores has been sanctioned last year, and we would like to continue that program because in fact when we talk about normal schools, we state do provide support to the teachers in the form of a deficit schools and aided schools. But these are the schools which are very important. So first time we brought them under that particular fold. So over and above the Government of India's, the granting aid and support that is being given through the Deen Dayal scheme. So this is one thing that we have provided to see that the children would get a quality education and sensitive support, because this is an education which requires a different commitment. When we talk about different commitment to teach the children, so we require the missionaries, we require the NGOs, we require the civil society organizations who work in this field. So this is something that the state is doing, and besides that, we also in fact are using to make sure that the services are reached to the last mile population. State is also it was initiated by the Government of India, and in fact Secretary of the Ministry, Dr. Reddy Subramanian, he actually initiated for social auditing these schemes, how actually these schemes are implemented. So we also have conducted the social audit of these schemes to see that how the last mile population is actually accessing these benefits. So that's one part that we have been doing. Besides that, we also actually were very fortunate, and in fact Government of India has always been very considerate to Meghalaya. We are getting a CRC, a Composite Rehabilitation Center in Shillong, which is going to be started very soon, in a month and so. So this is a regional center, so which would actually provide a lot of scope, in fact a lot of support, because that's a very important. This requires a different kind of a skill set, different kind of a approach to provide that rehabilitation for covering all disabilities.
So that's again which is coming up. That's the second thing that it's coming up. And besides that, we also are trying. We have already some early diagnostic centers, because if the children are identified at the earliest with disabilities, they can be rectified early. So that is the strategy. The state is actually looking at screening the children at a very early age to see that if they have any disabilities, so that they can be actually rectified. They can be they can be facilitated for the recovery at the earliest. So that's so early diagnostic and intervention centers have been set up. They also actually through CRC we are going to have a early diagnostic and intervention center that would actually cover all the disability sections with basically the children within the Meghalaya. NEC has done a lot. I can tell you this much, and in the balanced development of the northeastern region. We have set up many iconic institutions, whether it's in the sector of health, engineer, police, nursing, different colleges and institutions. It's another thing that we have handed over them to respective ministries. And then we have also taken up a lot of works on the road sector, the power sector, the health sector, the livelihood sector. So much so that, in fact, the footprints of NECs everywhere, it may be difficult to find a district where, at least the old district, Purana district जो है, जहाँ पे मतलब NEC का कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट और काम ना हो, ऐसा जो जहाँ तक मेरा समझ में है काम है ऐसा जिला. So Northeast has done a lot of things, but of late, and of course we are always here for the region and for the need of the people. We have worked a lot. कोरोना से बचने के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा आह्वान किया गया कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी है, तो मैंने देखा कि यहां पर हर व्यक्ति, हर बहन, उन्होंने सबने मास्क लगाया हुआ है. और इस कारण से अपनी बात प्रारंभ करने के पहले मैंने सबसे पहले आप सबसे क्षमा चाहिए कि ये बात वास्तव में सीखने लायक है. मैं देश भर में जाता हूं, अनेक स्थानों पर जाता हूं, लेकिन जिस तरह की अवेयरनेस हमने मास्क के प्रति यहां पर देखी है, ऐसा दृश्य बाकी स्थानों पर देखने में नजर नहीं आया. कुछ शासकीय हमारे विभाग के द्वारा भी इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है. उन सारी गतिविधियों का जायजा लेने के लिए, आप सबसे बातचीत करने के लिए कि हमको जाना है. और आज पहली बार आप सबसे मिलना हुआ, तो हमने हर एक एनजीओ का परिचय आपके द्वारा वो जानकारी मिली. कितने वर्ष से आप काम कर रहे हैं, किस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, एजुकेशन में कर रहे हैं, डिसेबिलिटी के क्षेत्र में कर रहे हैं, या नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. अलग अलग क्षेत्रों में आपने अपनी भी जानकारी आपने यहां पर उपलब्ध कराई. कुछ तो बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं. ये जानकारी राज्य सरकार के हमारे अधिकारियों से, हमारे राज्य सरकार के जो मंत्री हैं, माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग उसको बुला सकते थे, बुलाते भी हैं. लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे मंत्री उन राज्यों में जाएं, विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाकर, और इस क्षेत्र में जो कुछ गतिविधियां हो रही हैं उनके बारे में जानकारी लें. उन गतिविधियों को और कैसे प्रभावी ढंग से समाज के उन वर्ग के लोगों के लिए जिनकी योजनाएं बनी हैं, कैसे उन तक और प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है. आज तो आपसे परिचय हुआ, लेकिन अगली बार जब मैं आऊंगा, आज मैं एक संस्था में होकर आया, अगली बार जब आऊंगा तो बाकी संस्थाओं में से भी चयनित करके कुछ स्थान पर वहां आकर और आपके साथ में विजिट करके प्रत्यक्ष रूप से आपके गतिविधियों का हम जो है ना निरीक्षण करेंगे. हम सबके सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि हमारे जो सीमावर्ती राज्य हैं, जहां से दूसरे देश की सीमाएं जिन राज्यों से जुड़ी हुई हैं, बड़ी मात्रा में नशीली दवाओं की सप्लाई वहां से हो रही है और वो हमारी युवा पीढ़ी को खोखला कर रही है. जो युवा
अपने परिवार के विकास में, समाज के विकास में अपना योगदान देता है। जब वो युवा अपने परिवार और समाज के विकास में योगदान देता है तो उसका योगदान राष्ट्र के निर्माण में भी योगदान जोड़ता है। लेकिन वही युवा अगर नशे की गिरफ्त में आ जाता है तो उससे न केवल उसका परिवार दुखी होता है बल्कि परिवार के परिजनों को भी सार्वजनिक रूप से और इस तरह के व्यंग्यवाणों का मानसिक रूप से कटाक्षों को सुनना पड़ता है कि इनके बेटा कुछ नहीं करता है, दिन भर जो है ना नशे में जो है ना वो पड़ा रहता है। हमारे बहुत सारे एनजीओ इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। राज्य सरकारें भी इस दिशा में काफी संजीदगी के साथ में, संवेदनशीलता के साथ में उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी से हमको उसको एक गोल निर्धारित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो नशा मुक्त भारत अभियान उसकी शुरुआत की गई है और इन अभियानों की सफलता राज्य सरकारों की इच्छा शक्ति पर और उसमें एनजीओ के द्वारा किए गए प्रयासों की गुणवत्ता पर जो है ना बहुत कुछ निर्भर करता है। और इसलिए तय हुआ कि हमको राज्यों में जाना है, राज्यों के अधिकारियों के साथ में भी चर्चा करना है, एनजीओ के साथ में भी चर्चा करना है। काफी प्रयास इस दिशा में प्रारंभ किए जा रहे हैं। हमारे एनजीओ भी इस दिशा में काफी अच्छे काम कर रहे हैं। मैं भी जहां पर गया था उनसे सारी जानकारी ली। मैं कई स्थान पर देखकर आया कि जो नशा मुक्ति केंद्र है उन नशा मुक्ति केंद्रों पर आने वाले जो युवा होते हैं या व्यक्ति होते हैं कुछ को तो एनजीओ के द्वारा पहल करके लाया जाता है, कुछ को परिवार के परिजन ले जाकर वहां पर केंद्र में जाकर छोड़कर आते हैं कि किसी भी तरह से हमारे बेटे को, हमारे पति को और इससे जो है ना उससे बचाइए। कल मैं आसाम के एक केंद्र पर गया था। वहां पर दो बहनें आई हुई थी, वो अपने पति को वहां पर छोड़ के गई थी, दोनों बहनें, और उनके बारे में जो है ना जानकारी करने के लिए आई थी कि हमारे पति की जीवन शैली में यहां आने के बाद क्या बदलाव आया, किस तरह का सुधार आया। जब मैं उन दोनों युवाओं से पूछा आप यहां पर रहते हैं, इसके पहले आप क्या करते थे? तो बोले घर पर रहते थे, काम करते थे। मैंने कहा जब आप घर पर काम करते थे, दो पैसे कमाते थे, वो पैसे लेकर जब आप घर पर जाते थे आपका बच्चा बड़े प्रसन्नता के साथ में आपके पास आता था। आप जाते थे, आज उल्टा हो रहा है कि आपकी पत्नी आपकी कुशल क्षेम जानने के लिए यहां पर आई। आपके बच्चे जो है ना उनके विकास के बारे में कौन सोचेगा, उनकी शिक्षा के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके संस्कारों के बारे में। और आप अगर अपने व्यक्तिगत जीवन शैली में अगर बदलाव नहीं लाएंगे, इस नशे की गिरफ्त से अगर आप बाहर नहीं आएंगे तो आपके बच्चे कैसे अच्छे मार्ग पर चलेंगे। ये सारे एनजीओ, शपथ वाली में कहना चाहता हूं कि हमारे जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है उन स्किल डेवलपमेंट सेंटर से इनको जोड़ने की आवश्यकता है। हमारे उस दिव्यांगों को किस तरह का प्रशिक्षण हम देकर उसको स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ा सकते हैं। और दिव्यांगजनों के द्वारा निर्मित वस्तुओं का उनके लिए बाजार उपलब्ध कराने के लिए माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के द्वारा जो हाट लगाए जाते हैं, महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा भी जो महिला हाट लगाए जाते हैं, उसमें मुफ्त स्टाल उनको उपलब्ध कराए जाते हैं। हमको पहली आवश्यकता है कि उनको हम स्किल के साथ जोड़ें। उनको अपना काम करने के लिए सरकार उनको ऋण भी उपलब्ध कराती है, सब्सिडी भी देती है, बहुत कम ब्याज पर उनको वो राशि उपलब्ध कराई जाती है। हमारा युवा किस तरह का, हमारा वो दिव्यांग जो है ना किस तरह का कार्य कर सकता है, किस क्षेत्र में उसकी रुचि है, उस तरह के प्रशिक्षण के साथ उसमें जोड़ने का प्रयास करें। उस सरकार इस दिशा में जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 बना, उसमें जो दिव्यांगजनों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई। अभी तक जो दिव्यांगता की 7 श्रेणियां हुआ करती थी उनको बढ़ाकर 21 किया गया। सरकारी नौकरियों में भी जो आरक्षण का 3% आरक्षण था उसको बढ़ाकर 4% किया गया। ऐसे ही सरकारी सहायता प्राप्त जो उच्च शैक्षणिक संस्थान है उन उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भी दिव्यांगजनों के लिए
3% से बढ़ाकर आरक्षण उसमें 5% किया गया। हमारे यहाँ के भी मेघालय के भी जो हमारे दिव्यांगजन हैं, ऐसे सभी दिव्यांगजनों के ये यूडीआईडी कार्ड बन जाए ताकि शासन की योजनाओं का लाभ मिलने में उनको सुविधा हो सके। और इस कार्य में शासकीय प्रयासों के साथ साथ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारी जिले की समितियां हैं, उन जिला समिति के हमारे शहर समिति के सदस्यों को, ग्राम पंचायत होती, ग्राम पंचायत को सरपंच है जनपद के, फिर नगर पालिकाओं के जो हमारे वार्ड मेंबर होते हैं, हमारे असेंबली के हमारे एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं पार्लियामेंट के, ऐसे सारे जनप्रतिनिधियों का भी कि आप अपने क्षेत्र के जितने भी दिव्यांगजन हैं उनका यूडीआईडी कार्ड बनवाने में पहल करें ताकि शासन की योजनाओं का लाभ उन सबको मिल सके। पहले जो दिव्यांगता की श्रेणी 7 थी उसको बढ़ाएगा, उसमें 21 किया गया। उसमें अब बौनेपन की श्रेणी को भी इसमें शामिल किया गया। जो एसिड से हमला पीड़ित हैं उनको भी दिव्यांगता की श्रेणी में इसमें शामिल किया गया। बहुदिव्यांगता को भी जो इसमें शामिल किया गया। सुगम्य भारत अभियान, अब सुगम्य भारत अभियान में हमारे शैक्षणिक संस्थान, हमारे सार्वजनिक स्तर पर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और भी जितने अस्पताल, वहां पर दिव्यांगजनों के लिए रैंप बनाने के जो अभियान प्रारंभ हुआ है, यह अभियान इसीलिए प्रारंभ हुआ है कि दिव्यांगजन आसानी से वहां पर पहुंच सके। और इस योजना के अंतर्गत 1182 भवनों के लिए 484.26 करोड़ रुपए की राशि जो है वो जारी की जा चुकी है। एलिम्को के माध्यम से जो हमारे दिव्यांगजन हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014-15 से लगभग 10,000 से अधिक शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें 20 लाख से ज्यादा दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का लगभग 1200 करोड़ रुपए की राशि से इन उपकरणों का वितरण किया गया। ये वितरण करने के पहले परीक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। राज्य सरकार इसमें पहल करती है, कहीं पर जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर ये परीक्षण शिविरों का आयोजन करके उसमें विशेषज्ञों के द्वारा दिव्यांग के लिए किस तरह के सहायक उपकरण की आवश्यकता है वो चिन्हांकित करके उनको नामित किया जाता है। फिर जब ये शिविर लगाए जाते हैं, इन शिविरों के माध्यम से दिव्यांगजनों को वो उपकरण वितरण किए जाते हैं। यहां पर भी इस तरह के शिविरों का आयोजन हुआ होगा, सहायक उपकरणों को वितरण भी किया गया होगा। जो एलिम्को के द्वारा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने पहल की है, ट्राई मोटराइज गाड़ी दिव्यांगजनों के लिए 80% से ज्यादा दिव्यांगजन जो होते हैं उनके लिए ट्राई मोटराइज गाड़ी देकर के अपना वो बटन दबाएंगे, वो ट्राई मोटराइज साइकिल का स्टार्ट हो जाएगी और उसके माध्यम से वो दिव्यांगजन जो बेचारे घर पर पड़े रहते हैं, इस तरह के 80% दिव्यांगता वाले परिजन भी पारिवारिक कार्यों से बाहर जब कहीं जाते हैं उनको घर में छोड़ जाते हैं। कहीं सार्वजनिक स्तर पर जाना है तो वो जाते हैं, उसको छोड़ जाते हैं। लेकिन अब देश भर में देखने में आ रहा है इस तरह के दिव्यांगजनों को जब वो ट्राई मोटराइज साइकिल वितरण किया गया, उस ट्राई मोटराइज साइकिल के माध्यम से वो उस पर बेकरी का सामान रख के, उस पर ब्रेड रख के, बिस्कुट रख के वो गांव-गांव जाकर, वो शहरों में गलियों में जाकर उसको बेच करके आज वो आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे दिव्यांगजनों को हमने देखा कि वो रेडीमेड कपड़े जो है ना, वो रेडीमेड कपड़े लेकर अपने उसमें गाड़ी में रखकर डिक्की के ऊपर बांध करके साप्ताहिक हाट बाजार जो लगते हैं वहां पर जाने लगे हैं, उसका विक्रय करने लगे।